research and extension works is concerned. So basically, me and Jasim Bhai, we started our teaching career together almost with Shibli National College, Azamgarh, which is situated in Eastern UP. So he moved to Jamia Millia Islamia in the year 2004. For some year, he was lecturer, senior lecturer, then associate professor, and finally he was appointed as professor. So at this juncture of time, if you see his contributions, so remarkable contributions basically. So 12 books he has written in this short span of time, and all the books are very good, particularly teaching of biological sciences, computer applications in education, educational measurement and evaluation, personality patterns and job satisfaction, and understanding the self. Besides outcome-based curriculum and pedagogy, education for inclusion, that is equity, teaching and teacher education in India, ICT integration education. So a variety of topics he has written the books. So 12 books, 64 articles, and definitely 15 chapters in edited books. That's a big contribution. Besides, he has written 16 blogs in the learning material related to distance and open learning, and they are again, I mean, very in nature. So some blogs are written by Arjun Singh Center for distance and open learning at Jamia Millia Islamia. Some has been written for NCRT. Some has been written definitely for other reputed institutions of the country. So besides, he has reviewed so many books, he has translated so many books into Urdu, and you see, particularly for the NCRT, he has done this work, and he has been the member of textbook development and translation team at NCRT in more than 12. So he has a remarkable contribution in EduSet network, which was, a teleconferencing cum video conferencing program of Vigyan Prasar, which was of the Department of Science and Technology, Government of India, and has presented 44 papers in international seminars and conferences, besides having worked on various projects. So this was one of the very important project on which he worked, that was funded by UNFPA. It was related to the Madrasa teachers in Bihar. He has contributed in EPG Pathshala, and his various recorded lessons are available on YouTube. Then he was associated with Sarv Shiksha Abhiyan with particular focus on the state of Bihar. He is associated with Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. That was again a flagship program of the Government of India. Then you see, he has been associated with publication work of action research, achievement test, case study, again by NCERT, and you see the understanding the self book that just I have mentioned. So besides, he has contributed remarkably at university administration. Also, he was officiating principal, Jamia Senior Secondary School. He was a program coordinator, IGNOU Study Center at Jamia Millia Islamia. He was a member academic audit team, IQAC, Jamia Millia Islamia. He was a member without committee constituted by the Honorable Vice Chancellor at JMI. Besides, plenty of committees. In fact, I am skipping so many committees because it will be taking a lot of time. So he has been PhD program coordinator. He has been MA program coordinator. He has been the coordinator 2-year B.Ed curriculum design committee. In fact, and has contributed a lot so far as faculty development program is concerned at various HRDCs. Even in this holy month of Ramzan, you see, afternoon particularly, our energy level is down, but Jasim Bhai is so kind that the moment I requested him to deliver the lecture, he said, okay, I will deliver the lecture. So in a nutshell, in fact, it's very, his CV is very lengthy. It's like a PhD thesis, so it will be taking a lot of time. So in a nutshell, just I will say, a very good teacher, a very good researcher, has contributed a lot to outreach programs, and above all, a very good human being. So with this short introduction, I would like to hand over the session to Jasim Bhai. He will speak on holistic and multidisciplinary education. So sir, it's over to you. Okay, thank you. Thank you, Sajid Bhai. Thank you for a very comprehensive introduction of mine. In fact, you said it is Ramzan, and while you were
introducing me, I was thinking of taking a glass of water and put it with me, which is my usual practice. लेकिन अचानक याद आया कि यार आज तो रोजा से हूँ भाई, तो पानी तो ले ही नहीं सकते। तो फिर बैठा रह गया, चलो अपनी जगह बैठो। जी जी। Anyway, thank you so much. I think Hindustani will work in this group. Is there any person who doesn't know Hindi? No, mixed language will be comfortable. Okay. So, thank you so much. As Professor Saji Jamal Sahab has introduced me in a very comprehensive manner, although I'm not so comprehensive in my outlook, in my work, in my achievement, in my contribution towards education. But whatever he has talked about me, and you must be thinking that whatever I've done since I joined this teacher education program and started my career for the last almost 23, 24 years. And it looks like a multidisciplinary approach. And today's discussion is about holistic and multidisciplinary approach. And when we talk about the different work which we have done all together with Professor Saji Jamal, as well as individually, as he said that I have written books on teaching of biological sciences, science education, computer applications in education, personality pattern of and job satisfaction of teachers, then inclusive education. So it was an approach since beginning that a person needs to be multidisciplinary in today's scenario. Only then you can go ahead and you can progress in your career. And what it is also needed by all of us. Probably this is the reason that National Education Policy 2020 had thought about multidisciplinary approach of education at all levels, starting from schooling to higher education. And that is the reason that NEP 2020 has a focus on, multidisciplinary education. And before it focuses on multidisciplinary education, it talks about holistic education, holistic development of the learner, holistic development of the child, holistic development of the students studying at various levels of education. To my understanding, I think education must be holistic in nature. और मुझे लगता है कि ये कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि एजुकेशन को होलिस्टिक होना है और होना चाहिए। इनफैक्ट एजुकेशन का मतलब ही है overall development of personality, your complete development of personality, whatever potentialities, whatever capacities, whatever abilities, whatever interest and inclination the learners have, we as a teacher, we as an educator need to bloom all those capacities, all those potentialities, and make them out in the personality of the learner. This is basically the general aim of education. बच्चे के अंदर जितनी भी सलाहियतें छुपी हुई हैं, जितने भी एबिलिटीज छुपी हुई हैं, जितनी भी क्षमताएं छुपी हुई हैं, उन सबको बाहर लाना एजुकेशन का काम है, टीचर का काम। और हर बच्चे के अंदर, हर लर्नर के अंदर, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी लेवल पे पढ़ रहा हो, तालीम हासिल कर रहा हो, किसी भी कोर्स में हो, किसी भी प्रोग्राम में हो, उसको डेवलप कराना है और वो तमाम सलाहियतों को उभारना है जो उसके अंदर छुपी हुई है। जाहिर सी बात है वो नजर आती नहीं है डायरेक्टली नजर नहीं आती। जैसे पानी डायरेक्टली नजर आता है, पौधे डायरेक्टली नजर आते हैं, बर्फबारी डायरेक्ट नजर आती है, फसल क्रॉप डायरेक्ट नजर आता है, वो चीजें डायरेक्ट नजर आती हैं हमारी कंक्रीट फॉर्म में, बहुत सारी चीजें आसपास। बट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, the intelligence of the students, the creativity in the learners, the attitude of the learner, the aptitude of the learners, these are not directly observable. इनका पता लगाने के लिए बच्चों को उभारना पड़ेगा, उनको किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा,
किसी न किसी तरह के इंटरेक्शन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो जाकर के उनकी वो सलाहियतें निकल करके बाहर आएंगी। तो पता चलेगा कि इसके अंदर अच्छा क्रिएटिविटी इस टाइप की है, इसके अंदर इंटरेस्ट है, वो इस फील्ड में ज्यादा अच्छा, साइंस में ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगता है, सोशल साइंस में ज्यादा अच्छा है, लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा कर सकता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इसके अंदर है, इसके अंदर फाइन आर्ट्स का लगता है एटीट्यूड है, उसका इंटरेस्ट है। तो जब तक बच्चों को हम, जब तक लर्नर्स को हम तमाम तरह के मौके नहीं देंगे, तमाम तरह के मौके, तब तक उनको हम डिस्कवर नहीं कर सकते, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और जब तक हम बच्चों को, लर्नर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम उनको अच्छी तरह से एजुकेट नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। सो टू बी ए वेरी इफेक्टिव टीचर, whether working at a school level or higher education, संभालना मुश्किल है। we first of all need to understand our students। और बच्चों को अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ा चैलेंज है। अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, understanding their hidden potentialities and capacities and competencies that they have, which can be bloomed out, which can be developed, which can be nurtured to their fullest capacity. This is the main aim of education. और जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की सलाहियतें तभी बाहर निकलेंगी जब करिकुलम और करिकुलम ट्रांजैक्शन मल्टी डिसिप्लिनरी हो, मल्टी कल्चरल हो, मल्टी लिंगुअल हो, मल्टी फैसेटेड हो, तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा। और इसीलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है मल्टी डिसिप्लिनरी होना। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द फोकस ऑफ NEP 2020 ऑन होलिस्टिक एजुकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात अब क्यों पैदा हुई आजादी के इतने दिनों बाद, 1947 के बाद अब ये बात पैदा क्यों हो रही? क्या पहले की एजुकेशन में होलिस्टिक जो नजरिया था नहीं? वो क्या होलिस्टिक अप्रोच नहीं था? क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट हम नहीं चाहते थे? क्या हम ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का नहीं चाहते थे तब? ये एक सोचने का विषय है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, वी teach B.Ed students, M.Ed students, PhD students in education, and we have been learning when I was a student, and we have been teaching since I joined this profession. Since I joined the profession, the teaching and learning and education is an all-round development of the child. हम लोग डे वन से बात करते हैं, सुनते और सुनाते रहते हैं। गांधी जी की बहुत मशहूर डेफिनेशन जो 1937-38 में वार्धा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोली थी, जब पूरे हिंदुस्तान के शिक्षाविदों को जमा किया था, और इसलिए जमा किया था कि हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं हमारे हैं, जो कल के भविष्य हैं, जिनकी मदद से हम हिंदुस्तान को आजाद करना है, हमारे अपनी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, इंडिजिनस सिस्टम होना चाहिए हमारे एजुकेशन का। हम अंग्रेजों के सिस्टम पर भरोसा करके, और उसको हम सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वो सिस्टम अगर सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे और अंग्रेजों के सिस्टम पर चलते रहेंगे, इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन फॉलो करते रहेंगे, ब्रिटिश फंडेड, ब्रिटिश प्लान्ड एजुकेशन को हम स्कूलों में फॉलो करते रहेंगे, तो जो बच्चे जवान होंगे, जो बच्चे बड़े होंगे, जो बच्चे एडल्ट होंगे, वो इंडियन नहीं होंगे। वो इंडियन देखने में होंगे, अपने खून में होंगे और अपने कलर, चमड़े के रंग में होंगे, लेकिन अंदर से वो अंग्रेज होंगे। जो बात मैकॉले ने कही थी बहुत पहले, 1835 में मैकॉले ने कही थी, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। और इसलिए गांधी जी ने तब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वार्धा में ये बात कही थी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड सोल। शिक्षा से हमारा तात्पर्य यह है बच्चे के और मनुष्य के तीन अलग अलग पहलू का विकास। उसके बॉडी का डेवलपमेंट हो, यानी कि स्किल का डेवलपमेंट, तो बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग, उनके अंदर स्किल होते हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप, और हाथ और पैर से काम कैसे लिया जाए, बॉडी ऑर्गन से कैसे काम लिया जाए, कैसे काम लिया जाना चाहिए, जो कि दुनिया का कोई भी स्किल नहीं है जिसमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। ऑल दी स्किल्स आर परफॉर्म यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस था। अब कहा मस्तिष्क का विकास हो, रीजनिंग का, थिंकिंग का, इमेजिनेशन का, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के डेवलप हो,
क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो, लॉजिकल एनालिसिस डेवलप हो, जो एनईपी 2020 आज भी कह रहा है। तो तब उन्होंने कहा था ये दो विकास, एक स्किल का, बॉडी पार्ट्स का, ऑर्गन का, और खासतौर पे दिमाग का, और फिर कहा तीसरा पार्ट स्पिरिट, मूल्य का विकास, वैल्यूज डेवलपमेंट, सोशल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, सेकुलर वैल्यूज, आपका जो रिलीजन है रिलीजियस वैल्यूज, हेडोनिस्टिक वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, एथिक्स का डेवलपमेंट। ये तीन मेजर पार्ट है ह्यूमन पर्सनालिटी, तीन मेजर पार्ट है, मेजर डोमेन है ह्यूमन पर्सनालिटी का। दुनिया का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें तीनों डोमेन पर फोकस ना किया जाता हो, और दुनिया का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें इन तीन डोमेन के अलावा चौथा डोमेन होता हो, नहीं होगा। ये भी क्लेम है। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आप यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो फाइन आर्ट हो, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटीज हो, लैंग्वेज हो, मॉडर्न सब्जेक्ट्स हो, मैनेजमेंट हो, मेडिकल साइंस हो, डेंटिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, वट एवर सब्जेक्ट यू टॉक अबाउट, you will find the three domains are there in all these subjects, whether it is academic subjects or professional subjects or vocational subjects. तीन डोमेन, तीनों डोमेन को डेवलप करना जरूरी है। लीडरशिप की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए, और लीडर का वैल्यू सिस्टम भी एक अलग तरह का होना चाहिए। टीचर्स के लिए टीचिंग स्किल्स होने चाहिए, सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, और टीचिंग स्किल्स के साथ साथ फिर टीचर वाली वैल्यूज भी होनी चाहिए, कुछ टीचर वाली वैल्यूज कि आप कोऑपरेटिव हों, आप सपोर्टिव हों, आप सिंपैथेटिक हों, आप एम्पैथेटिक हों, बच्चों के साथ आप फ्रेंडली हों, ताकि वो आप तक आ सकें, सवाल पूछ सकें, लीडर होकर सवाल पूछे आपसे, आपसे इंटरेक्ट करें, आपकी सरपरस्ती, आपका हाथ उनके सर पे हो, वो सारे वैल्यूज। तो इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, इन ऑल सब्जेक्ट्स, you will find three domains: cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. ये तीनों डोमेन हम बात करेंगे डिटेल में अभी कुछ देर बाद। और इसीलिए होलिस्टिक एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन होगा तभी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बच्चों का, और सोसाइटी का भी तभी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, वरना सोसाइटी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। समाज में विद्वान अगर बहुत हों, लेकिन समाज के लोगों के अंदर शिष्टाचार नहीं हो, अकदार नहीं हो, मूल्य नहीं हो, सामाजिक मूल्य नहीं हो, एक साथ मिलकर रह नहीं सकते हो, तो विद्वान का कोई काम नहीं। फिर ऐसा विद्वान है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस टू द सोसाइटी एट ऑल, अगर उनकी विद्वानता समाज के काम ना है तो कोई फायदा नहीं फिर उसका। इसीलिए हर सब्जेक्ट के अंदर तीनों डोमेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि तीनों डोमेन का डेवलपमेंट इतना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए टीचर को मेहनत पड़ती है, करिकुलम बनाने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करिकुलम ट्रांसलेट करने वाले को मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन पेपर बनाना भी अपना आप में एक चैलेंजिंग काम होगा, असेसमेंट करना चैलेंजिंग काम होगा। हर एस्पेक्ट टीचिंग लर्निंग का अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए बहरहाल एनईपी 2020 जो बात मैं कह रहा था, कैसा नहीं था कि पहले हमारे पास ये गांधी जी में 1937-38 की बात कर रहा था, वो फोकस हमारा ध्यान तो है कि शिक्षा हमेशा ऑलराउंड होनी चाहिए, होलिस्टिक ही होना चाहिए, है ना, लेकिन उस पर फोकस शायद नहीं था। एनईपी 2020 फोकस कर रहा है, इस टर्म को पॉलिसी में अपनाया है। ये डिफरेंस है, अप्रोच का डिफरेंस है। इस टर्म को एनईपी 2020 ने अपनाया है, अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिया है। इंडियन एजुकेशन विल बी होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। जो पहले थ्योरेटिकल था, किताबों के अंदर नहीं आया था, इस शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ था, अब पूरी की पूरी पॉलिसी उस पर फोकस कर रही है। करिकुलम उसको सामने रख के बनाना है, किताबें उसको सामने रख के बनानी है,
टीचिंग मेथड उसको सामने रख करके तय करना है, असेसमेंट का तरीका उसको सामने रख करके तय करना है, सब कुछ। अभी रिसेंटली आई वाज वर्किंग विथ NIOS, National Institute of Open Schooling, and I have been working with NIOS for the last almost 16 years, 18 years, some of the confidential work. And this year, a particular confidential work was very, very critical in nature. The same work which I've been doing for the last 16, 17 years was very critical this year because of this holistic approach, this multidisciplinary approach, the change in the examination system, the change in the structure of paper development and its moderation, the coverage of the syllabus in the question paper, to test aspirants' critical thinking, logical thinking, ability to apply their knowledge, whatever they have learned during the course. So this is all about because of the change in the policy perspective. बहरहाल ये सारी बातें अभी होती रहेंगी। मैं जरा प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूं, फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे, वरना आप आजकल प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, वरना लगेगा कि जब ऐसे ही मैं गफाक रहा हूं, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूं आपके साथ तो सही रहेगा। विजिबल है? इज इट विजिबल? स्लाइड्स आर विजिबल? जी, ओके, थैंक यू। सो दिस इज होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब देखिए एक और बात, हम व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर सोसाइटी, हम सब कहते हैं आजकल नई जनरेशन में ये इशू है, वो इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं, वैल्यूज नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं आजकल। जो एल्डर्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हमारा स्कूल सिस्टम और हमारा यूनिवर्सिटी का सिस्टम। देखिए आप आवाज बहुत आ रही है, आप प्लीज, आवाज बहुत आ रही है। रतुल दत्ता साहब आप म्यूट कर लीजिए, प्लीज। रतुल दत्ता साहब म्यूट कर लीजिए जी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको कि क्यों फोकस है होलिस्टिक एजुकेशन। क्योंकि हम लोग थ्रू आवर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ग्रेजुएट्स of the school pass students who passed school after class 10th and 12th, the university graduates, university postgraduates, and even PhD holders, and even those who are supposed to be the intellectual of the society, समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग उनके अंदर भी देखें आप, हम एजुकेटेड तो हो गए हैं, क्लेम करते हैं कि एजुकेटेड हम हैं, हमारी सोसाइटी एजुकेटेड है, हम क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ लिटरेसी जो है 90% को क्रॉस कर चुकी है। कुछ स्टेट में, केरला वगैरह में 100% लिटरेसी है, इंटेलेक्चुअल हम एडवांस हैं, हम ये क्लेम करते हैं। अब क्लेम करना कोई इतना बुरी बात नहीं है, लेकिन वी डोंट लुक इनटू आवरसेल्व्स, वी डोंट इंट्रोस्पेक्ट as a learner, as an individual of the society, as a member of the society, as a member of the community, as a member of the nation, as a citizen of the nation. एजुकेशन जो हमने ली है, और जब हम क्लेम कर रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड लोगों के अंदर क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या उनके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए। तो 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप साइंस के ग्रेजुएट्स हो, इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हो, ज्योग्राफी के ग्रेजुएट्स हो, आप पारंगत हो अपनी फील्ड में, यू आर मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, बहुत अच्छी बात, इट इज वेल एंड गुड। लेकिन शिक्षा पहले आदमी को इंसान बनाती है, पहले इंसान बनना जरूरी है, और एजुकेशन का फोकस यही है। सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बाद में बनिए, पहले एक बेहतर इंसान बनना जरूरी है। एंड दिस इज द मेजर फोकस ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। मेजर फोकस, क्या हमारी एजुकेशन हमें एक कल्चर कर रही है? क्या हमारे ग्रेजुएट्स एक कल्चरेशन के मोड में हैं? वेदर आवर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन, whether our education refine the perceptions and sensitivities of the new generation,
to enrich our culture and promote national cohesion. ये क्या हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. You can ask the question to yourself. कल्चरल इनरिचमेंट हो रहा है क्या? एक कल्चरेशन हो रहा है, हमारा कल्चर इनरिच हो रहा है, हमारे पूरे मुल्क के अंदर नेशनल कोहेशन की भावना पैदा हो रही है, राष्ट्रीय एकता. हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहने वाले हैं, किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, किसी भी इंडिजिनस, किसी भी रीजनल कल्चर से बिलोंग करते हो, किसी भी रीजनल डिस्पैरिटीज हमारे अंदर किसी भी तरह की हो, डिस्पाइट ऑल डिस्पैरिटीज, डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस, वी आर सिटीजन ऑफ द सेम नेशन, वी आर इंडियन, and we must have national cohesion on this aspect. We must respect each other despite having so many differences of religion, of belief, of culture, and etc., etc. And if education fails to develop this kind of national cohesion, then there is a question mark on the whole system of education. हम पढ़े लिखे होने के बावजूद, हम इंटेलेक्चुअल्स क्लेम करने के बावजूद, हम कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम एक क्लास के पॉलिटिशियंस हैं. उसके बावजूद अगर नेशनल कोहेशन की भावना नहीं है, हम मुल्क को एक साथ जोड़ कर रख नहीं सकते, एक साथ जोड़ने में खुद जुड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में कमी है और उसे ठीक करने की जरूरत है. Similarly, do our education combat the negative forces working in the society? Whether our education system, whether our educated persons, whether our young graduates, postgraduates, and degree holders, whether they fight against the destructive tendencies within themselves, within the individual, and the destructive forces within the society, like racism, casteism, रीजनलिज्म, कॉम्युनलिज्म, सेक्टरियनिज्म, ये सारे के सारे बहुत सारे जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं माशरे के अंदर है, हमारे सोसाइटी के अंदर है, हमारे समाज के अंदर है, और बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हमारे अंदर खुद होते हैं, दूसरे के बारे में बुरा सोचना. डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अपने पड़ोसी के बारे में बुरा सोचना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनकी तरक्की से खुश नहीं होना, उनके लेग को पुल करना. दिस आर द कॉमन फेनोमेना. वो हमारे डिपार्टमेंटों में भी होता है, अपने आप सब लोगों के यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है. ये सब ताज्जुब ये है, यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स में भी होता है, टीचर्स के बीच भी होता है, डॉक्टर्स के बीच भी होता है. आजकल तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में डेथ हो जाने के बाद भी पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है 2-4-5 दिन बिल बनाने के लिए. दिस इज सबको पता है. It means, again, they need to think about the quality of our education. What kind of product we are producing through our education system. हम मशीन पैदा कर रहे हैं या इंसान बना रहे हैं? This is the question. Holistic education is required to produce insan, human being, not machine to earn livelihood, to earn money. No, not like that. So combative role, यहां भी हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है. Then liberating role, शिक्षा का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, लिबरेट करना समाज को, सोसाइटी को, माशरे को, फर्द को, इंडिविजुअल को, व्यक्ति के ग्रुप को, जमात को लिबरेट करना. किससे लिबरेट करना? इलिटरेसी से लिबरेट करना, इग्नोरेंस से, अज्ञानता से लिबरेट करना, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन से लिबरेट करना, और किसी भी तरह का जो ऑपरेशन होता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जब बड़े लोग गरीबों को सताते हैं, अमीर गरीब को सताता है, मालिक अपने नौकर को सताता है, ऑपरेस करता है, जमींदार लेबर को, खेत में काम करने वाले मजदूरों को जब ऑपरेस करता है, इस तरह की चीजों से लिबरेट करना सोसाइटी को, समाज को, माशरे को, देश को लिबरेट करना, ये लिबरेशन है. और एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इस तरह की चीजों को लिबरेट करने में समाज को.
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिबरेट किया, सती प्रथा से लिबरेट किया समाज को। ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो काम करते रहे हैं। वो उनका इंडिविजुअल एफर्ट था जो कल्मिनेट हुआ ग्रुप के एक्सेप्टेंस में, और फिर गवर्नमेंट को पॉलिसी बदलनी पड़ी, नई पॉलिसी बनानी पड़ी। आज भी जरूरत है ऐसे रिफॉर्म्स की, बल्कि हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है एज ए होल। और इसीलिए होलिस्टिक एजुकेशन की बात जोरों से की जा रही है। अब जरूरत इस बात की है कि बातें जोरों से सिर्फ ना की जाए, काम भी जोरों से किया जाए, और उसका रिफ्लेक्शन भी समाज के अंदर आना चाहिए। धीरे 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 अफेक्ट नजर आना चाहिए, प्रभाव नजर आना चाहिए। प्रभाव नजर आएगा धीरे धीरे तो फिर मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारे टीचर का भी, हमारे स्टूडेंट्स का भी, हमारे सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों का भी, समाज के लोगों का भी, नागरिक का भी। So we need to not only create a good policy and good curriculum and good policy in the form of education policy or whatever, but we need to put it on the ground and see its reflection, up to what extent it is being achieved, so that we can bring improvement in that. Then integrative role, शिक्षा का दूसरा, इंटीग्रेट करे, समाज के साथ बच्चों को इंटीग्रेट करना, दुनिया के साथ बच्चों को इंटीग्रेट करना, मुआशरे के साथ बच्चों को इंटीग्रेट करना. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन. इंटीग्रेशन ऑफ द चाइल्ड विद द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड. The more the learners are integrated with the society, with the community, with the world, the more they will develop, they will prosper, they will progress, they will succeed in their lives. The less is the integration, the less is the development. कहते हैं हम लोग एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है भाई, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है. जिस सोसाइटी में रख दो फिट हो जाएगा ये, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रख दो फिट हो जाएगा, जिस कम्युनिटी में रख दो फिट हो जाएगा, अपनी जगह बना लेता है. वही लोग अपनी जगह बनाते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट वही लोग होते हैं जो वेल कनेक्टेड होते हैं, वेल इंटीग्रेटेड होते हैं विद द सोसाइटी, विद द कम्युनिटी, विद द वर्ल्ड. तो एजुकेशन मस्ट इंटीग्रेट ईच एंड एवरी लर्नर विद द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड. आजकल ये काम टेक्नोलॉजी ने बड़ा आसान कर दिया है. पूरी दुनिया से इंटीग्रेटेड लोग इंटीग्रेटेड है. आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, पल 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 की खबर आजकल आ जा रही है फौरन. 5G की मदद से फास्ट इंटरनेट है, डिफरेंट सोशल मीडिया है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, सब कुछ पता चल जाता है आजकल. और लास्ट, इकोनॉमिक रोल, इनेबलिंग लर्नर्स टू बी एबल टू अर्न लाइवलीहुड. ये भी आजकल मेरे ख्याल में ये आखिरी वाला जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट. पुराने जमाने में एंशिएंट इंडिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता था, लिस्ट इंपॉर्टेंट होता था. इसलिए एजुकेशन कुछ ही लोग लेते थे, तो है अपर क्लास सोसाइटी सिर्फ लेती थी एजुकेशन. एजुकेशन उन्हीं का राइट था, उन्हीं के लिए था, एक अच्छा मानव बनने के लिए था, अपने राजपाट को चलाने के लिए होता था, ज्ञान पर उनका अधिकार था. समाज ये मानती थी कि भाई ठीक है, पर्टिकुलर क्लास के लोगों को काम पढ़ने का है, पर्टिकुलर क्लास के लोगों को काम खेती करने का है, सब काम बटा हुआ था. लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है. मेडिवल इंडिया में आइए, तब भी तकरीबन ऐसे ही था. राजे रजवाड़े अपने बच्चों को पढ़ाते थे, उनको कमाने के लिए नहीं पढ़ाते थे, अर्न करने के लिए नहीं पढ़ाते थे, जॉब के लिए नहीं पढ़ाते थे. ब्रिटिश इंडिया में आने के बाद फिर ये हुआ कि एजुकेशन भाई अंग्रेजी सिखाओ ताकि ये लेबर की तरह हमारे ऑफिस में काम कर पाए, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करें, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में काम करें, उनको नौकरी मिल जाए ब्रिटिश इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल जाए, अंग्रेजी में काम कर सके. तो शुरू हुआ ये प्रोसेस. एनीवे, सो लेकिन आज की डेट में इकोनॉमिक रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया. एक अच्छा इंसान, एक शरीफ, महज़्ज़ब, शिष्टाचारी है, बहुत नेक, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन अगर उसकी अर्निंग नहीं है
अगर वो माली तौर पर गरीब है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड अगर है, तो उसकी कोई इज्जत समाज में नहीं है, उसका कोई वकार नहीं, उसका कोई स्टेटस नहीं होता है। इसलिए फोकस आजकल इकोनॉमिक रोल पे है। पैसा है तो सब कुछ है, ये फिलॉसफी आजकल है। हालांकि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता, इज्जत नहीं खरीद सकता, ज्ञान नहीं खरीद सकता, स्किल नहीं खरीद सकता। Whereas if you look at these 5 important roles of education, a cultivating role, combative role, liberating role, integrative role, and economic role, you can analyze yourself up to what extent our education system from school to higher education have succeeded in playing these roles in an effective manner. And you will find the answer yourself up to what extent we have succeeded or we have failed. Our education system have succeeded or failed in playing these 5 important roles. तो आपको जवाब मिलेगा अपने आप। ये जवाब हमारे पॉलिसी मेकर्स को मिला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर को मिला, और इसीलिए उन्होंने फोकस किया भाई हमारा एजुकेशन जो है होलिस्टिक नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है होलिस्टिक। हम रमन जैसे लोगों को पैदा तो कर रहे हैं, टैगोर जैसे लोगों को पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़े ग्रेजुएट्स हैं हमारे, बहुत बड़े जो हमारे अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्किल्स तो हैं, लेकिन ह्यूमन स्किल्स जो जरूरी है, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उसकी कमी है। एंड वी नीड टू फोकस अपॉन देम। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव एन होलिस्टिक एजुकेशन। एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। हम क्लास में सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाएं, फिजिक्स को भी समाज से जोड़ें, केमिस्ट्री को भी सोसाइटी से जोड़ें, हिस्ट्री को भी कम्युनिटी से जोड़ें, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस वगैरह तो आप जुड़ा ही रहता है, लेकिन सीधे लिंक करना है, डे टू डे लाइफ से लिंक करना है बच्चों, वो चीजें उसकी जरूरत है। दिस इज द बेसिक आइडिया, द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, एज गांधी जी स्पोक दिस इन 1937-38, और बाद में कई लोगों ने कहा। तो जाहिर सी बात है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट लाने के लिए, करने के लिए बॉडी का, माइंड का, सोल का बैलेंस डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, संतुलित तौर पे तीनों का विकास होना चाहिए एक अच्छे मानव के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ का एजुकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर इस पर भी पूरा का पूरा फोकस दिया जाता है। हम जो बात कर रहे थे बेसिकली डेवलपिंग ऑल डोमेन्स ऑफ पर्सनालिटी, जो बात मैंने कर ली कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर में बात कर रहा था, उसकी मैं बात कर रहा था। तीनों डोमेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। And in all the subjects, all the 3 domains are required to be developed in a very balanced manner, As a teacher, अगर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी रिलेशन आपका है, और आप मैथमेटिक्स या साइंस या सोशल साइंस और जो भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, आप अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ और अपने पड़ोस के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आप, इसका मतलब है कि अनबैलेंस्ड पर्सनालिटी है। एजुकेशन हैज फेल्ड टू डेवलप योर पर्सनालिटी व्हिच इज बैलेंस्ड इन नेचर। एजुकेशन की भी गलती हो सकती है, और आपकी पेरेंटिंग की भी गलती हो सकती है, और आपकी अपनी गलती भी हो सकती है, हमारी अपनी गलती भी हो सकती है। गलती तो कई लेवल पे हो सकती है, बट एक बात तय है कि डेवलपमेंट होलिस्टिक नहीं हुआ है। आप अच्छे टीचर बहुत हैं, लेकिन अच्छे पिता शायद नहीं, अच्छे हस्बैंड नहीं, अच्छी वाइफ नहीं, अच्छे पड़ोसी आप नहीं, तो कहां होलिस्टिक हुआ? दिस इज द फोकस, कि अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर आपका स्किल डेवलप हो रहा हो, आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हो, उस फील्ड में काम करने के लिए आपके पास जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रहा हो, और आपके अंदर अफेक्टिव डोमेन का डेवलपमेंट भी हो रहा हो, वैल्यूज का, एथिक्स का भी डेवलपमेंट हो रहा हो। जो एथिक्स, जो वैल्यूज एक तो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है, और एक कॉमन सा होता है, फैमिली वैल्यूज,
values to lead a good life at home and at the business place, वो सारी की सारी चीजें। डॉक्टर अगर बहुत बेहतरीन स्पेशलिस्ट है हार्ट का या ब्रेन का, बहुत अच्छी बात है, ये स्पेशलिस्ट है हार्ट का, बहुत साउंड नॉलेज है, बहुत अच्छा सर्जन है, लेकिन अगर वो पेशेंट से ठीक से बात नहीं करेगा, उसके साथ हेल्दी रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएगा, उसको कंसोल अगर नहीं कर पाता है, अगर उस पेशेंट को इस डॉक्टर को देख के खुशी नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट जरूर है ये, लेकिन ये जो दूसरा एस्पेक्ट है अफेक्टिव डोमेन का, ये इसका वीक है, इसका मतलब वीक है, और उतना कामयाब डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर कामयाब वो है जो अच्छा सर्जन भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी है, पेशेंट के साथ अच्छे से बात भी करता है, अच्छी ट्रीट करता है, कंसोल करता है, उसके दर्द को समझता है, उसके परेशानी को समझता है, उसका भागीदार बनता है, और फिर जब बारी आती है ऑपरेशन करने की, तो ऑपरेशन भी अच्छे से करता है। सर्जन अगर है तो सर्जरी अच्छे से करता है, मेडिसिन का एक्सपर्ट तो मेडिसिन अच्छी देता है। तो ऐसा नहीं है आजकल की तरह से ये 2 दवा जो है, असली दवा तो ये 2 है जो आपकी बीमारी की है, 4 दवा तो एक्स्ट्रा है जिस पर कमीशन मिलना है डॉक्टर को, हॉस्पिटल को। 2 दवा से काम चल रहा था, असली दवा ये 2 है जो बीमारी का इलाज कर रही है, लेकिन 4 दवा जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, पेशेंट को बेचारे को क्या पता, उसको तो 6 दवा खानी जो डॉक्टर ने लिखी है, डॉक्टर को पता है ये कि इसका दवा ये पहली और तीसरी काम की है, बाकी तो 4 दवाएं जो इसकी है वो बस बिल बढ़ाने के लिए है। तो ये अगर है, हमारे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर अब हमारे हो गए हैं, वो पिछले मैं तकरीबन 12-13 साल 15 साल से उनके ट्रीटमेंट में हूँ, रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट है वो। कभी दिल्ली के स्कॉट्स हॉस्पिटल में बैठते थे, कभी होली फैमिली में, कभी बंसल में, आजकल मैक्स में, कभी कई सारे हॉस्पिटल में बैठे हो, परमानेंट कहीं ठीक से बैठ नहीं पाते हो। हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने सारी कहानी बताई मुझे, ये प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने कहा, हमसे कहा जाता है कि सीटी स्कैन कर लिखिए, आपकी तरफ से सीटी स्कैन नहीं आ रहा है पेशेंट का, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। मैं कहता हूँ क्यों लिखूं, जब जरूरत नहीं है तो क्यों लिखे एक्सरे, क्यों लिखें स्कैन, सीटी स्कैन, होल बॉडी स्कैन क्यों लिखें, इतना टेस्ट लिखा। प्रेशर आता है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का कि आप ये लिखिए, ये लिखना है, अर्निंग बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है हॉस्पिटल, फजूल के दवा लिखवाने के लिए कहा जाता है। अल्टीमेटली या तो मुझे छोड़ना पड़ता है हॉस्पिटल, या वो कहते हैं जाइए आप, इसलिए बदलते रहते हैं हॉस्पिटल। अभी जिस हॉस्पिटल में है कई सालों से, मेरे ख्याल में 6-7 साल से है वहां, दिस इज बेसिकली इज रिक्वायर्ड ऑफ द होलिस्टिक एजुकेशन। ठीक है, इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं, वो एक अलग बात है। जो लोग मैनेजमेंट के लोग होंगे यहाँ आप में से, जो पॉलिटिकल साइंस के लोग होंगे, है ना, उसको अलग एंगल से सोच रहे होंगे, आप सोचने का मौका है। जो कि बीमारी है, एक इंसान के अंदर सिर्फ नहीं, बीमारी पूरे समाज के अंदर है, बीमारी पूरे सिस्टम के अंदर है। और जाहिर सी बात है, सिस्टम के अंदर जब बीमारी है, समाज के अंदर जब बीमारी है, तो एक आदमी उसका इलाज कर भी नहीं सकता है, फिर इलाज तो समाज से ही आएगा, और समाज को एजुकेशन ही बना सकता है। तो एजुकेशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। हर समस्या का समाधान जो है एजुकेशन के अंदर है। आज कहते हैं ना, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, empowerment of those who don't have, the lower class of society, middle class of society, empowerment of marginalized section of society, empowerment of this and that, all these empowerment will come only through education. Educate कर दो आप अच्छे से, अच्छी एजुकेशन दे दो, empowerment अपने आप आ जाए। सीधे बगैर एजुकेशन के empower करेंगे तो प्रॉब्लम पैदा होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, बीमारी और बढ़ेगी। जैसा कि आपने देखा होगा, पूरे मैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश की तस्वीर अच्छे से जानता हूँ, जहाँ जो है सीट रिजर्व हो गई है महिलाओं के लिए कि ये महिला जो है यहाँ की मुखिया बनेगी, मुखिया का इलेक्शन महिला लड़ेंगी, लेकिन मुखिया
जीत भी जाती हैं, पति काम करते हैं मुखिया का। जो असली में जो इलेक्टेड मुखिया हैं वो घर बैठती हैं, रसोई चला रहे हैं, उनके पति चला रहे हैं। तो ये इंपावरमेंट थोड़ी है, बगैर एजुकेशन के इंपावर कर दिया ना, तो ये प्रॉब्लम है। बगैर एजुकेशन के काउंसलर हो गए, बगैर एजुकेशन के एमएलए हो गए, बगैर एजुकेशन के एमपी हो गए, बगैर एजुकेशन के लीडर हो गए आप। हर सिस्टमिक प्रॉब्लम है। एनीवे, होलिस्टिक एजुकेशन is required for the holistic development of personality of the learner to have a good and healthy society. तो हर एक सब्जेक्ट की परफॉर्म में, चाहे वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे लैंग्वेज के हो, चाहे नेचुरल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी सब्जेक्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बिल्कुल अलग नहीं होता, बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है। ईच सब्जेक्ट हैज सम रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, और उसके साथ जोड़ के ही अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, सिर्फ अकेले नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि होलिस्टिक एजुकेशन के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कुछ और करना पड़ेगा। अभी हम पहुंचेंगे उस तरफ, दूसरे स्लाइड में बात करेंगे उसकी। एक और चीज यहां जोड़ते हैं, जो लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, जो बात कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तो है, इसके अंदर कुछ स्किल्स हैं। हालांकि साइकोमोटर डोमेन के अंदर वो सारे स्किल्स आती हैं, कुछ स्किल्स कॉग्निटिव डोमेन के अंदर भी आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कॉग्निटिव डोमेन की बात है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी का पार्ट है, गांधी जी ने जो कहा और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने कहा। लेकिन यूनेस्को ने फोकस करके कहा कि भाई ये 10 जेनरिक लाइफ स्किल्स हैं, ये हर बच्चे के अंदर, हर लर्नर के अंदर, हर सिटीजन के अंदर डेवलप होना चाहिए थ्रू आवर एजुकेशन। सो द एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन दीज 10 जेनरिक लाइफ स्किल्स फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी in schools as well as in universities and colleges. Each child, each learner must be aware about himself and herself. हर बच्चे को उसके अपने बारे में अवेयर होना चाहिए। ये देखिए, कहीं अजीब गरीब बात कर रहे हैं, अपने बारे में सब अवेयर होता है, अपने बारे में सब अवेयर नहीं होता है। हाँ, ये धोखा है। हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, ये धोखा हो सकता है हमारा, ये धोखा हो सकता है। हम अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते और सब कुछ सही सही नहीं जानते, ये भी बात है। हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को पूरी तरह नहीं जानते। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे टीचर हमें मदद करेंगे इसको, उसको बताने में, समझने में। जो मैंने शुरू में कहा था, थ्रू डाइवर्स एक्टिविटीज, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करिकुलम, through diverse involvement of learner in diverse kind of activities. जब आप हमको 10 काम करने का मौका दीजिएगा, जब हमको लिखने का भी मौका दीजिएगा, जब आप हमको खेलने का भी मौका दीजिएगा, जब आप पेंटिंग का मौका दीजिएगा, जब आप हमको गाने का मौका दीजिएगा, जब आप हमको कोई मजदूरी करने का मौका दीजिएगा, जब आप हमको प्लांटेशन का मौका दीजिएगा, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप अवेयर होंगे अपने बारे में, आपको कहाँ ज्यादा मजा आ रहा है, डिस्कशन में ज्यादा मजा आ रहा है या साइलेंट रीडिंग में ज्यादा मजा आ रहा है, खामोश मुताला करने में ज्यादा मजा आ रहा है या लाइव रीडिंग में ज्यादा मजा आ रहा है, लोगों के साथ डिस्कस करने में ज्यादा मजा आ रहा है या अकेले पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, पेंटिंग में ज्यादा मजा आ रहा है, क्रिकेट में ज्यादा मजा आ रहा है, फुटबॉल में ज्यादा मजा आ रहा है। किस तरह की एक्टिविटीज में, किस तरह के गेम्स में, किस तरह के स्पोर्ट्स में, किस तरह के इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा मजा आपको आता है और ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। जब मौका देंगे तब तो पता चलेगा, डिस्कवरी तभी होगी बच्चे की। तो बच्चा अपने आप से सेल्फ अवेयर हो जाए, हम सब अपने आप से सेल्फ अवेयर हो जाए। हम अपने आप को तो सब कहते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हो सकता है हम खुशफहमी में मुब्तला हों कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। हम अच्छे इंसान है या नहीं ये तय दूसरे लोग करेंगे ना, आप क्यों कर रहे हो? हम अच्छे हैं या नहीं इसका ये तय दूसरा करेगा, सोसाइटी करेगी, मुआशरा करेगा, समाज करेगा, समाज के लोग करेंगे। वो जजमेंट जो होगा, जनरलाइज्ड जजमेंट मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी के लोगों का, वो जजमेंट आपके बारे में से, वरना अपने मुंह में मिट्टी तो सब बनते हैं।
तो चिल्ड्रन को, लर्नर्स को, चाहे डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन पे हो, वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू मेक देम एबल टू अंडरस्टैंड देयर सेल्फ, बिकॉज accordingly they will develop the objectives of their life, the target of their life, the aims of their life. कहाँ ज्यादा कामयाब हो सकता है, किस फील्ड में ज्यादा बेहतर कर सकता है, ये पता चलेगा उसको. Then empathy, see, again very important, generic life skills. UNESCO talk about that. Everybody must have empathy. आज आपके दिन बहुत अच्छे हैं, आप दूसरे पर जुल्म कीजिए. सोचिए जरा कि जब आपके दिन खराब होंगे तो कैसा लगेगा जब आप पर कोई जुल्म करेगा. दिन कभी भी किसी के हमेशा एक जैसे नहीं रहते. ड्यूरेशन जरूर घटेगा बढ़ेगा, जनरेशन भी हो सकता है कुछ 2-3 जनरेशन तक आप बहुत खुशहाल रहे. कोई नहीं रहा दुनिया में आज तक हमेशा के लिए. हिटलर भी नहीं रहा, मुसोलिनी भी नहीं रहा, मुगल एम्पायर नहीं रहा, गुप्ता डायनेस्टी नहीं रही, कोई नहीं रहा. हम आप भी नहीं रहेंगे. इसलिए अपने आसपास जो जो वीक लोग हैं, कमजोर तबका है, जो नीडी लोग हैं, उनके साथ एम्पैथी का ख्याल करें. स्टूडेंट्स के साथ एम्पैथी, स्टूडेंट के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ एम्पैथी. क्लास अपने आप में डाइवर्सिफाइड ग्रुप होता है. अपने हम लोग सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपकी क्लास में 40-50 बच्चे होंगे. थिंक अबाउट दैट. ऑल दीज 50 स्टूडेंट्स आर डिफरेंट. ऑल दीज 50 स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट. कोई रिक्शा वाले का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है, कोई इंजीनियर का बेटा है, कोई प्रोफेशनल्स का बेटा है, कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई रैग पिकर का बेटा है. सोचिए, आज हमें पता चला, हमारे डिपार्टमेंट में पता चला कि एक टीचर ने कुछ वुड क्राफ्ट, हमारे यहाँ एक क्राफ्ट है, एक आर्ट क्राफ्ट में से एक क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, जो बच्चों को सिखाई जाती है, बीएड के बच्चों को, डीएलएड के बच्चों को, कि वुड के साथ आप टीचिंग एड बनाइए क्लास में पढ़ाने के लिए. अपनी क्लास को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, टीचिंग एड्स कैसे बना सकते हैं लकड़ी का इस्तेमाल करके. स्कूल के रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वुड से रिलेटेड कैसे आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. हमेशा आपको कारपेंटर को बनाने की नौबत ना आए. बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल लकड़ी से बना सकते हैं आप. घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बना सकते हैं आप. वेस्ट वुड से बना सकते हैं आप. बहुत सारी चीजें बन सकती हैं. पता चला कि 2-3 बच्चों के साथ कुछ इश्यूज आ गए. क्योंकि प्रोविजन ये है कि अब बच्चे अपना अपना सामान लेकर आएंगे और फिर अपने सामान से अपना बनाएंगे सामान, वो नए सामान बनाएंगे, घर से लेके आएंगे अपना, या खरीद के लाएंगे अपना वो मटेरियल टू क्रिएट समथिंग यूजफुल. अब वो 2-3 बच्चे के पास, गरीब बच्चे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो घर से सामान अपना लकड़ी का टुकड़ा ले आया उठाकर. टीचर ने उसको कहा कि नहीं ये तो काम नहीं करेगा. Anyway, I'm not going to into the detail of that. I mean to say, okay, these 50 students are different, diverse classes there, and we need to think about all of them, each one of them. That is inclusive classroom, and we need to be inclusive in our teaching, inclusive in our learning, inclusive in our in curriculum transaction. पूरा एम्पैथी जरूरी है. Then critical thinking must develop. Critical thinking in all the learners. Creative thinking, decision making ability, problem solving, effective communication, another very important skill. Interpersonal relationship, coping with stress जो बहुत कॉमन है आजकल, and coping with emotions, कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत जरूरी है. हाँ, बहुत जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस. कामयाबी की जड़ें हैं ये सब, रूट्स ऑफ सक्सेस है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए. ये डेवलप करना होलिस्टिक एजुकेशन का पार्ट है. होलिस्टिक एजुकेशन का पार्ट है सब डेवलप. ये टारगेट होना चाहिए हमारा, ये सारी की सारी चीजें.
अब जाहिर सी बात है कि कैसे होगा ये होलिस्टिक, होगा कैसे, कैसे बना सकते हैं। हम अभी कह रहे थे कि साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट में पेंटिंग का काम है। पेंटिंग क्या पेंट कराओगे आप? पेंटिंग, किसी चीज की पेंटिंग करानी है तो आइडिया होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई थॉट प्रोसेस होगा। वो थॉट प्रोसेस, वो आइडिया, वो ऑब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड हो सकता है, सोशल साइंस से भी हो सकता है, फिजिक्स किसी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। आई मीन टू से कि you cannot teach a particular subject in isolation, and no learner can learn any subject in total isolation. It is impossible, because each subject has some correlation with other subjects. Of course, with some there is a high correlation, with some there is a low correlation, but there is always correlation. हमेशा बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला टीचर पढ़ा रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स पढ़ा रहा है। अब खुद केमिस्ट्री नहीं आती है तो बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा ही नहीं सकता। जिस बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है वो बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं सकता। फिजिक्स का टीचर बगैर मैथ के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकता। जाहिर सी बात है कि वी एज ए टीचर नीड टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी टीचर। आपको उन अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उन सब्जेक्ट की समझ भी होनी चाहिए जिसकी मदद से आप आगे बढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में, जिसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हो। अब बच्चे जिनकी मदद से अच्छे से वो सब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो हो सकता है कि आप सोचें कि इतना तो सब जानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, इतना सब नहीं जानते। जैसे बच्चे रटते हैं, बहुत सारे टीचर भी रट जाते हैं और पढ़ा देते हैं जाकर। नो क्वेश्चन, नो डिस्कशन, नो क्वेरीज एट ऑल। लेक्चरर, इसलिए कहते थे लेक्चरर, वो तो नाम बदल गया ना, अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और लेक्चरर इसीलिए था। वी यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर इन द क्लास। गए 45 मिनट नॉन स्टॉप बोला, निकल के चले आए। क्या लर्निंग हो रही है उसमें, क्या टीचिंग है ये, भाषण दे रहे हैं। इसलिए डिस्कशन मेथड जो आया, ग्रुप डिस्कशन आया, क्वेश्चन आंसर मेथड आया, इंक्वायरी का अप्रोच आया पढ़ाने का, फील्ड मेथड्स आया पढ़ाने का, प्रोजेक्ट मेथड आया पढ़ाने का, ये सारे के सारे इनोवेटिव मेथड्स आए, वो इसीलिए आए कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बहरहाल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है दरअसल एक रास्ता है होलिस्टिक एजुकेशन को लाने का। इट इज ए मीन्स टू होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक की तरफ बगैर मल्टी डिसिप्लिनरी हुए जा नहीं सकता। आपको 2, 3, 4, 5 डिसिप्लिन से तो साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जो मेन डिसिप्लिन आपका जो कहता है मेजर और माइनर, आजकल जो 4 ईयर का शुरू हो रहा है ना, ये मल्टीपल इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ नया प्रोग्राम 4 ईयर ग्रेजुएशन, जिसमें कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे रिलेटेड हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव करिकुलम यही से निकल के आया है। आपको चूंकि होलिस्टिक एजुकेशन देना है बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना, उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा आपको। और मल्टी डिसिप्लिनरी होने के लिए कैसे होंगे मल्टी डिसिप्लिनरी आप, जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होंगे आप। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इज अगेन ए नीड towards multidisciplinary education, towards holistic education, towards holistic learning and holistic development of the learner. जरूरत है, फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, ताकि हम बच्चों को, लर्नर्स को उनकी पसंद और उनकी जरूरत के हिसाब से मौका दे सके, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से, उनके हिडन पोटेंशियलिटीज के हिसाब से उनको मौका दे सके। जो पढ़ना चाहो पढ़ो, जैसे जिसमें आपको ज्यादा अच्छा लगे पढ़े, जहां ज्यादा अच्छा कर सकते हो पढ़ो। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी, गौर करोगे तो होगा आप, है ना। कई बार होता है कि हमने यार ये सब्जेक्ट लिया था 12th क्लास में, लेकिन गलती कर गया, ये नहीं पढ़ना चाहिए था, मजा नहीं आया, ये पढ़ते तो बहुत अच्छा करते शायद, है ना। कई बार होता है ऐसा। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दैट, पर्सनल एक्सपीरियंस। वो होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ नहीं तो बहुत लोगों के साथ होता है।
at some stage of your life, some stage of your career, you have this kind of notion that ये सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में लिए होते तो शायद ज्यादा अच्छा करते, ज्यादा मजेदार था और हमारे करियर से जुड़ा हुआ था, हमारे चॉइस से जुड़ा हुआ था। उस वक्त समझ में नहीं आया। उस वक्त बच्चों हमारे साथी सब थे, 2 3 4 मिलजुल करके तय कर रहे थे यार एक साथ पढ़ना है तो ठीक है, सब लोग ले लेते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट से रिलेशन है या नहीं छोड़ो यार, बस ले लेना है, फलानी मैडम पढ़ाती हैं, नंबर अच्छा देती हैं, बस ले लो। हाँ, फलाने सर पढ़ाते हैं बहुत बहुत डिफिकल्ट है यार, वो तो लेना नहीं है। नहीं, बाद में पता चला यार वो पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन वो कैरियर के मामले में वो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था जहां हम लोग आज काम कर रहे हैं, वो पढ़े होते तो आज ज्यादा मजा आता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव करिकुलम, जो डुअल डिग्री का प्रोग्राम आजकल जो हमारे यूजीसी ने दिया है ना, एक साथ 2 डिग्री बच्चे ले सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अपने आप सबको पता है, मल्टीपल इंटीग्रेटेड सिस्टम अब सबको पता है, क्रेडिट बेस्ड कोर्स एंड प्रोजेक्ट सबको पता है आजकल है ना? तो ये सारा का सारा बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और अल्टीमेटली होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ ये सब हमको ले जा रहा है, उस तरफ हम जा रहे हैं बेसिकली बुनियादी तौर पे। जो बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। ये होलिस्टिक एजुकेशन के 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं जो NEP 2020 बात करता है। वी नीड टू हैव एन एजुकेशन वेयर वी कैन हैव a balanced development of personality of all learners across levels, जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज भी डेवलप हो, एथिक्स भी डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उसका हो, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी डेवलप हो, इन एडिशन टू द सब्जेक्ट्स दे आर स्टडी। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो विषय वो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है, उसके साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है ना, यानी कि स्पेशलाइजेशन जो है उनका जो मेजर सब्जेक्ट है उसके साथ साथ ये सब कुछ डेवलप हो रहा हो, वही चीज़ है। पूरी की पूरी लर्निंग होलिस्टिक होनी चाहिए, एजुकेशन होलिस्टिक। अब देखिए एक और बात यहाँ पर आती है, एक होलिस्टिक एजुकेशन है, एक होलिस्टिक लर्निंग है। टीचर में क्लेम कि आई एम प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशन, गवर्नमेंट में क्लेम आई एम हैविंग होलिस्टिक एजुकेशन इन आवर कंट्री, curriculum developers may claim that they have developed a curriculum which is holistic in nature, having the potentialities to develop holistic development of personality of the learner। लेकिन क्या वाकई लर्नर की लर्निंग होलिस्टिक हो रही है या नहीं, ये देखने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट है, होलिस्टिक एजुकेशन एक अलग चीज है, होलिस्टिक लर्निंग एक अलग चीज है। ये बात बिल्कुल सही है कि होलिस्टिक एजुकेशन का प्रोविजन होगा तभी होलिस्टिक लर्निंग होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि होलिस्टिक एजुकेशन का प्रोविजन हो और लर्निंग भी होलिस्टिक हो रही है, ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एज ए टीचर नीड टू बी विजिलेंट एंड अलर्ट इन द क्लास, alert while implementing the curriculum, because teachers are the basically main person who implement curriculum, टीचर। तो लर्निंग होलिस्टिक हो रही है नहीं हो रही है, ये भी देखना जरूरी है। लर्निंग आउटकम्स देखिए बच्चे का, whether the competencies which are supposed to be developed in the learner, they are developing in them or not. Look at that. Whether the students are developing the competencies, developing the skills, developing the knowledge, developing the understanding, and developing the values and ethics which are required to learn by them. Actually learning हो रही है, holistic learning। एक बच्चा नंबर तो बहुत अच्छे लाता है, क्लास में 90s में नंबर लाता है हमेशा, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो रहा हो या यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जामिनेशन हो, 90s में लाता है। लेकिन क्लास का सबसे शरीर बच्चा है वो, 2-4 लोगों से झगड़ा हो चुका है उसका, 2-4 टीचर ने शिकायत भी उसकी की है, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? वी नीड टू करेक्ट देम, वी नीड टू एनालाइज देम। देखना पड़ेगा वजह क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता हो, होम बेस्ड फैक्टर हो सकता हो, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बट वी नीड टू करेक्ट। एक बच्चा है लिखता बड़ा अच्छा एग्जामिनेशन में, 80s में 90s में नंबर लाता है, वेरी गुड राइटर, वेरी गुड प्रेजेंटर एज फार एज द रिटन कैपेबिलिटीज कंसर्न। कहा जाता है करके दिखलाओ इसे, प्रैक्टिकली करके दिखलाओ इसको, व्हाट एवर यू हैव रिटन डू इट।
Now he is unable to do with that level of efficiency as shown by him in his writing skills. होलिस्टिक लर्निंग नहीं हो रही, इसका मतलब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी है लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग उसकी नहीं हुई, इसका मतलब दिस इज नॉट होलिस्टिक एजुकेशन एंड दिस इज नॉट होलिस्टिक लर्निंग. So we as a teacher need to think about that. We need to be vigilant in our classroom, in our schools, in our college, in our universities, and we need to fulfill the real responsibility of a good teacher. क्योंकि होलिस्टिक लर्निंग बच्चों की उसका जो रास्ता है वो हम सब से होके जाता है, हम तमाम टीचर से होके जाता है रास्ता, और रास्ता खराब अगर हो जाएगा तो बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती. हम सब रास्ते हैं, हम सब बच्चों के लिए एक वे हैं, एक ग्रांड ट्रंक रोड की तरीके से हैं, एक मीन्स की तरीके से हैं. इसलिए हम सबको इम्प्लीमेंट करना है और हम सबको होलिस्टिक लर्निंग के लिए, होलिस्टिक एजुकेशन के लिए काम करना है, उसको इंश्योर करना है. वी नीड टू बी स्किल्ड इन दैट रिगार्ड, तभी हम कर पाएंगे. जाहिर सी बात है कि हम सबों को फिर उसी हिसाब से हम सब के खुद उसी तरीके से अपने आप को स्किल करना पड़ेगा, थ्रू इन सर्विस ट्रेनिंग, थ्रू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, थ्रू इंडक्शन प्रोग्राम, थ्रू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, थ्रू सेल्फ रीडिंग. अब सेल्फ रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है. कोई जरूरत नहीं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, कोई जरूरी अटेंड करे आदमी, हालांकि करना पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विल पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स. विल पावर सबसे इंपॉर्टेंट ताकत, विल पावर है. हम अच्छा करना चाहते हैं, हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं, हम उनके होलिस्टिक लर्निंग के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तभी हो पाएगा, वरना फिर कैजुअल अप्रोच होगा तो नहीं होगा. हमारे ख्याल में स्लाइड से बहुत सारे हैं, बातें बहुत कुछ हो सकती हैं, चूंकि दिस इज एन एरिया, द होलिस्टिक एजुकेशन एजुकेशन इज अ वाइड एरिया, देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस, बट आई need to learn from you people. You people have experienced in working in higher education for so many years. आपके बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, डिस्कशन के लिए, आपके ऑब्जर्वेशंस के लिए, ताकि हम एक दूसरे के सवालों से, एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन से, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीख सकें. इसलिए हम अब क्लोज करने जा रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन. ठीक है. So now the house is open for question. Your observation, your questions, your experience that you want to share, you can share on holistic and multidisciplinary education. Okay. Please come out with your ideas, with your experiences, with your suggestions, with your questions. क्योंकि मैं अकेले बोलता हूँ, जो बात मैं कह रहा था अभी, वन वे टीचिंग, वही बात मैं करता हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है. इसलिए मैं पूरा वक्त जो है सिर्फ वन वे लेक्चर में लगाता नहीं हूँ. मैं आमतौर पे क्लास में मैं डिस्कशन करता हूँ, पूरी क्लास डिस्कशन करता हूँ. यहाँ पर तो नेचर कुछ दूसरा है. तो अभी वी हैव 20 minutes ऑलमोस्ट, सो वी कैन हैव डिस्कशन, वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर, एंड वी कैन ऑल्सो लर्न टू योर एक्सपीरियंसेस इन दिस रिगार्ड. सो वेलकम प्लीज. जी, कौन शुरू करेगा? ये तो शुरू करना भी अपने आप में एक स्किल है, और शुरू करने के लिए भी ना सोचना पड़ता है थोड़ा सा. देखिए, मैं आप लोग अपने से नहीं बोलोगे तो फिर मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, फिर मेरे पास तो नाम है नहीं यहाँ पर सब. सो प्लीज स्टार्ट योर सेल्फ. तब इत्तेफाक से हमारे पास सबसे ऊपर जो नाम है अमनप्रीत कौर का है. डॉक्टर अमनप्रीत कौर, आर यू हियर? देन है अभिषेक राय. अभिषेक राय. एक और है अभिषेक, क्या है, डैड हिच, क्या है ये, DPSRU. अभिषेक ददीच सर. जी अभिषेक, हाँ यस अभिषेक जी, डॉक्टर साहब. यस, गुड इवनिंग सर. थैंक यू सर. जी अभिषेक जी, व्हाट इज योर से ऑन दैट?
your Yeah. experience, your expertise, your take on the holistic and multidisciplinary education. Sir, from your session, I came to learn that the many more of the aspects we can govern during the courses and whatever the courses we are delivered to the students. But first of the thing I would like to know कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक एंट्री लेवल जो है कई तरह लेवल पे दिया गया है कि वेदेवर अगर वो 6 महीने का 1 साल का कोर्स कर लेता है तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाता है, एंड देन अगेन इट गोज टू दी अदर लेवल, तो उसको एक और सर्टिफिकेट या कुछ मिल जाता है। बट मेरा ये कंसर्न है कि सर जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर किसी पर्टिकुलर साइंस स्ट्रीम या कोई भी कोर्स में लेता है तो उसकी मतलब जो एक ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, ये जितने भी एग्जिट होने से बार बार ये तो मुझे नहीं लगता है कि क्वालिटी जो है ज्यादा अच्छी हो सकती है एजुकेशन की। और वहां पे जो आप जो ये होलिस्टिक अप्रोच कह रहे हैं वो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से फुलफिल हो सकती है। जी, बहुत सही आपने जो है कहते हैं ना कि नब्ज आपने पकड़ी है ना, जहां से आपने सवाल रेज किया है। इट्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। एक बात तो देखिए, ये जो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप, मल्टीपल इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना, 4 साल का प्रोग्राम है ये जी। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लीजिए और फिर एग्जिट करके चले जाइए, है ना। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है, हायर एजुकेशन में आता है, वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो वो तो एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता है ना, और वो जो है अपने रिसोर्स के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है, अच्छे प्रोग्राम में, अच्छे कोर्स में दाखिला लेता है। वो बड़े आजकल तो खैर ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, बताते हैं उसका, और सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और सबका ध्यान JNU और DU और जामिया और BHU और JNU की तरफ होता है सबका ध्यान। अब जिसको एडमिशन मिलेगा वो लेता है एडमिशन। हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चा जानबूझ करके एग्जिट करता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। मजबूरी इंसान को एग्जिट कराती है, मजबूरी। ये मजबूरी कैसे होती है? एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन सोसाइटी है हमारी भाई, और इंडियन सोसाइटी में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है लड़कियों की शादी करना। इंडियन कल्चर है हमारा, लड़की की शादी, लड़का अच्छा मिल गया भाई तो शादी सबसे पहली चीज है, ग्रेजुएशन सेकेंडरी है, नहीं तो वो लड़की नहीं भी चाहती है शादी करना, तो पेरेंट कहते हैं बेटा कर लेना, बाद में तुम ग्रेजुएशन रखना, चलो पहले शादी, लड़का अच्छा मिल गया है, अमेरिका जाने वाला है, नहीं कैरियर तुम्हारा बन जाएगा, नहीं तो मजबूरी में एग्जिट हो रहा है। पहले क्या था कि अब एग्जिट, बच्ची शादी कर गई, अब शादी हो गई, ससुराल चली गई, 1 साल के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रहता था, पहले ड्रॉप आउट हो जाती थी वो, वापस आने का कोई चांस नहीं था, और अगर चांस था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है ना, 7 साल के अंदर पूरा कर लीजिए, 4 साल के अंदर पूरा कर लीजिए, लेकिन आमतौर पर कम आते थे लोग, नहीं तो NEP एक तरह का एक मौका दे रही है सिर्फ, है ना। NEP ये सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रही कि आप एग्जिट कीजिए, ये सिचुएशन NEP कर रही क्रिएट कि जो लोग किसी मजबूरी की वजह से जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो ये ना समझें कि हमारे लिए अब हायर एजुकेशन खत्म हो गया, दरवाजा खुला है आपके लिए। आपकी जब मजबूरी दूर हो जाए, परेशानी आपकी दूर हो जाए, जब आप नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएं और इच्छा हो आपकी एजुकेशन पूरा करने की, तो यू आर अगेन वेलकम। आप दूसरे साल से शुरू करो, 1 साल का सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया है, ठीक है। उस बेस पे ये NEP क्लेम नहीं कर रहा है कि उस बेस पे नौकरी मिलेगी उसको 1 साल के सर्टिफिकेट बेस पे। भाई BA करने के बाद तो नौकरी नहीं मिल रही है आजकल, MA और PhD करने के बाद तो सड़क पे घूम रहे हैं, तो 1 साल के सर्टिफिकेट से या 2 साल के डिप्लोमा से नौकरी तो मिलनी नहीं है। लेकिन एक चीज उनके पास है एटलीस्ट, भाई 1 साल का मैंने कोर्स किया हुआ है, अब हम अगर वापस आएंगे तो सेकेंड ईयर से करेंगे, 2 साल का किया हुआ है हमने, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, अब हम तीसरे साल से शुरू करेंगे। तो हमारे ख्याल में ये सिर्फ एक तरह का एक रास्ता है कि ड्रॉप आउट जो होके जा रहा है मजबूरी की वजह से, चाहे वो फादर की डेथ हो गई, दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं था, अकेले बेटा है भैया, घर चलाना है, क्या करेगा बेचारा बच्चा, दुकान पे बैठना है। अब बेचारा नया पहले कभी दुकान पे बैठता नहीं था, फादर उसके डिवोटेड थे कि बच्चे को पढ़ाना है, मजबूरी उसके सामने आ गई। अब 1 साल 1.5 साल तो दुकान समझने में लगेगा, दुकान पर जो दूसरे मैनेजर होंगे, दूसरे स्टाफ होंगे, उनसे सीखेगा। अब 1 1.5 साल 2 साल में दुकान को सेटल कर दिया उसने। अब दिल में आ रही है कि पापा भी चाहते थे मैं एजुकेशन हासिल करूं, तो अब मन कर रहा है उसका कि हम एजुकेशन ले। तो अब वो
आगे की पढ़ाई शुरू कर दे वो। तो मेरे ख्याल में ये प्रोविजन जो है एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है कि डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज fully exit from higher education. Doors are always open. When situation is normal, you come back and complete your education which is left over. ये एक मौका है, तो इसको इस एंगल से लेना चाहिए। गवर्नमेंट को एक दूसरा फायदा भी इसके अंदर है। गवर्नमेंट को एक दूसरा फायदा ये है कि देखिए गवर्नमेंट ये कहती है अभी हम 2035 तक हमारा जो हायर एजुकेशन में जो हमारा टोटल जो हमारा एडमिशन जो हमारा है ना, वो 35% है, उसको 50% तक ले जाना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER है ना। तो अब जो बच्चा ड्रॉप आउट हो जा रहा था, एक तरह से वो आउट हो जा रहा था, वो ड्रॉप हो जा रहा था। अब चूंकि एंट्री एग्जिट सिस्टम है तो अब एग्जिट नहीं माना जाएगा, अब ड्रॉप आउट नहीं माना जाएगा, अब तो आने का चांसेस है ना, तो हमारा GER अपने आप बढ़ जाएगा। ये जरूर बेनिफिट है। क्या पता सर गवर्नमेंट जो GER है वो आपका कैलकुलेट कर रही है कि वो इतना डिप्लोमा लेकर गया है, हाँ, या इतना सर्टिफिकेट लेकर गया है। देखिए हमारे हायर एजुकेशन में जो GER है हिंदुस्तान का बहुत बहुत लो है ना, बहुत लो है ना। स्कूल में भी लो है, लेकिन हायर एजुकेशन में आप 28-29% हमारा आपका GER है। यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जितने बच्चे हायर एजुकेशन में आ सकते हैं 12th क्लास करने के बाद, उनमें से 28-29% बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा रहे हैं आपके पास, बाकी नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स एंड वी नीड टू इम्प्रूव दैट, है ना। तभी तो आप ग्लोबल लेवल पे आपका एक छवि बनेगी आपकी, है ना। हायर एजुकेशन में बच्चे आए तभी तो नेशनल प्रोग्रेस भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। हमें अपने GER को भी इम्प्रूव करना है, तो ये हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम हमारे GER को भी इम्प्रूव करेगा। वो इस तरह से करेगा कि ड्रॉप आउट होकर मौका है कि आप दोबारा शुरू करने का, तो आप आ जाइए। एक तो 2 तरीके हैं, एक तो ये कि वापस आएगा बच्चा, चूंकि मौका उसको है, उसका 1 साल 2 साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं गई, एक वो शुरू करने का चांस है, इसलिए वो दोबारा वापस आएगा। और एक दूसरी बात इसके अंदर है जो आई एम नॉट वेरी कंफर्म कि वो कैसे करेंगे कैलकुलेट, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब आपने ऑलरेडी मौका दिया हुआ है तो हम उसको ड्रॉप आउट गिनेंगे नहीं अब ना। पहले तो कौन कर लेते थे कि बच्चा छोड़ के चला गया, 50 बच्चे ने एडमिशन लिया BA हिस्ट्री ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 45 बच्चे अब हैं, यानी कि 5 बच्चे छोड़ के चले गए। हम 45 गिनते थे, अब हम नहीं गिन पाए। हम कहेंगे नहीं 45 तो अभी हैं, 5 अभी एग्जिट लिया है, ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। इसका मतलब एनरोलमेंट हमारा एज इट इज रहेगा। फॉर आउट ऑफ 45 इज इन प्रोग्रेस एंड 5 इज एट द रेस्टिंग स्टेज, नॉट ड्रॉप आउट। तो इस तरह से हम अपना GER भी शायद इंप्रूव कर सकते हैं, वो चीज है। तो थैंक यू फॉर मेरा इसके साथ में एक सवाल और है सर जी, कि जहाँ पे अभी अगर जैसे NAAC या कई तरह के ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं जहाँ पे मेंटर मेंटरशिप प्रोग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी, तो इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा? क्योंकि अगर है ना पर्टिकुलरली स्टूडेंट जो है मल्टीपल एग्जिट ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो जो एक डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच के साथ में और 360 डिग्री पे जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो तो मिस हो जाएगा कहीं पे। जो एक कनेक्शन बनता है स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में वो भी मिस हो जाएगा सर काफी टाइम। वो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, होगा। एक बात तो खैर सबसे पहली बात ये है कि हम लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में आने से बहुत ही नॉर्मल तरीके से हर बच्चा जो है वो ज्यादातर बच्चे एग्जिट मारने लगेंगे, आराम से जानने लगेंगे। हमें नहीं लगता है कि ऐसा होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान में जो बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं कैरियर बनाने के लिए आते हैं, वो कैरियर बनाने के लिए आते हैं। अब कैरियर ऐसे बनता नहीं है, वो तो मुखर्जी नगर में जाकर, दिल्ली में आकर के देख लीजिए, इलाहाबाद में जाकर देख लीजिए, पटना में जाकर देख लीजिए, बनारस में जाकर देख लीजिए, आप कैरियर बनाने के लिए कैसे लोग पूरे 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 नॉर्थ इंडिया के पूरे हिस्से से इधर आते हैं। साउथ में चले जाइए तो बेंगलोर में चले जाइए आप, तो आपको मिलेगा आपको पूरा। तो कैरियर ओरिएंटेड बच्चे हैं ये सब, है ना। तो एग्जिट, हमें नहीं लगता है कि एग्जिट इज गोइंग टू बी ए नॉर्मल फिनोमेना। हमें लगता है कि एग्जिट मजबूरी में ही कोई करेगा, जो मैंने पहले बताया जी। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड, है ना। तो वो जो लिंक है टीचर के साथ, जाहिर सी बात है जो एग्जिट करेगा इक्का दुक्का जो भी बाय चांस, उसका तो कमजोर होगा ही, क्योंकि उसने एक टीचर के साथ हो सकता है कि एक रैपो डेवलप किया है, अब वो 2 साल के बाद वापस आ रहा है, नए टीचर मिलेंगे उसको, है ना। कुछ दिनों के बाद एक और समस्या आएगी कि जिस करिकुलम और जिस सिलेबस पे आप थे 2 साल पहले, अब वो सिलेबस बदल गया है, जी। 2 साल के बाद आ रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जब ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा, है ना, तो कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज तो बाद में समझ में आएंगी, बाद में उसको एड्रेस किया जाएगा, वो बाद में आएगा। लेकिन वन थिंग इज वेरी श्योर, जो मुझे लगता है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी ए नॉर्मल फिनोमेना ऑफ
कि हर बच्चा जो है एग्जिट का मौका है तो चलो भाई चलते हैं। अब नहीं लगता है ऐसा। नो पेरेंट्स विल अलाउ एंड इवन नॉट स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स इन इंडिया and especially जामिया मिल्लिया और AMU और JNU और BHU और DU और such यूनिवर्सिटीज, बल्कि हम तो कहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए आप, है ना, तो कैरियर बहुत बड़ा जो है एक टारगेट है इंडियन स्टूडेंट्स का, और ख़ास तौर पे बिहार और यूपी और राजस्थान जैसे बच्चे का जिनके यहाँ दूसरा का ऑल्टरनेट नहीं है ना। लोअर क्लास के भी बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, इंडस्ट्रीज के बच्चे थोड़े ही हैं भाई कि हमारे पास जो है फैक्ट्री है, हमारे पास कंपनी है, हम तो सिर्फ डिग्री ले रहे हैं बस हो गया, और अपना ही जाकर के CEO बनना है अपनी कंपनी में। हमारी हिंदुस्तान में वो नेचर ही नहीं है। नहीं, हम तो भाई वो है कि हमको अपने पेरेंट्स की लाइफ का भी ख्याल रहता है, नहीं, उनकी जिंदगी को हमें ठीक करना है। ये भी हमारे बच्चों के सामने होता है, जो देख रहे हैं बचपन से कि कैसे मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं और हमको पढ़ा लिखा रहे हैं। तो हमारे सामने पेरेंट्स की लाइफ भी होती है कि हमको अपनी लाइफ नहीं बनानी है, हमको पेरेंट्स पहले हमारे लिए, उनको सपोर्ट सिस्टम बनना है। तो हमें नहीं लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल फिनोमेनन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और कोई anybody else? Yes, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकिता दिस साइड। Yes, thank you. Welcome. सर पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। कुछ एक क्वेश्चंस राइज हुए थे बट आपने जो सर ने क्वेश्चन पूछा उसी में ऐसे रिजॉल्व हो गए। वही ना सिलेबस का इशू था कि ठीक है, अगर मल्टीपल एग्जिट प्रोविजन बहुत ही अच्छा है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू सो मच। डिसीजन लिया है। बहुत सारे देखो रीजंस होते हैं, बहुत अच्छे से सर आपने हमें समझाया है ना। कुछ मैरिज इश्यूज हो जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को एग्जिट करनी पड़ती है अपनी एजुकेशन। एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, प्रोफेशनल जब कोई एजुकेशन लेता है तो वो जानबूझ के तो वो एग्जिट नहीं करेगा, कोई ना कोई मेजर रीजन रहता है उसके पीछे जिसकी वजह से वो एग्जिट करता है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा से आके जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और उनका वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा, डिग्री, इस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो सर बहुत ही अच्छे से आपने इस चीज को इंटरप्रीट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड द सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सर। नो क्वेश्चंस एट ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। यस, और कोई मेरे भाई, मेरी बहन, एनीबॉडी एल्स? टाइम भी तकरीबन हो ही चला, 3 मिनट बचा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। सचिन शर्मा जी सर, बहुत ही आपने जो इंडियनाइजेशन और एक तरह से कह सकते हैं कि जो वास्तव में हमारे एंशिएंट इंडिया से लेकर के जो टीचर्स के रोल ऑफ टीचर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज फॉर टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द पेरेंट्स, वो आपने सर बड़ा डीपली समझाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट योर इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। तो और कोई सवाल हो? जी हेलो सर। जी हेलो सर, the earlier system there is also in provision for readmission. If I left and I can readmit in the is there any provision was there in earlier system? I can enter in the second semester or second year? Yes, in earlier system your university must have been have that. All the universities in India have some sort of this system. You can complete your 2 years program in 3 years or 4 years. So there is a provision. But now there in the earlier system it was 6 years to complete in the 3 years graduation, and now it is given the 7 years to complete the 4 years graduation. Yes. 7 so years. So 1 year extension, it has been added 1 year extra. This is major difference. 7 years is by default, जो कि अभी ABCT में सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, UGC ने, लेकिन यूनिवर्सिटी हम बाय डिफॉल्ट 7 इयर्स है। यूनिवर्सिटी में उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपको फ्रीडम है ना। एक बात तो ये, but you have to complete the 4 years under the 7 years. After the 7 years you will not allowed to enter in the at this moment of time. No, 7 years is the ceiling. ठीक है। Earlier it was 6 years. Earlier it was 6 years. 6 years. Some university has 4 years, 5 years, है ना। Different universities have different provisions. But earlier you were not giving any certificate on. But sir, on concern is raised that what will be the effect of certificate if I complete 1 year and I get a diploma certificate? What will be the use of it? Is there any provision till now? I have already discussed in my presentation
of course this certificate is not going to earn job for you. जो मैंने पहले भी कहा कि जैसे BA का पूरी तरह कर लेने के बाद, after completing your whole education, after your graduation or post graduation or PhD, we have a scarcity of employment in India. We are unable to get jobs. Lakhs of graduates and postgraduates are wandering on the road. So what to talk about those who just have 1 year certificate or 2 year diploma? It is not going to earn livelihood for them. But this certificate and this diploma will be a kind of reward for them, that they have spent 1 year or 2 year in graduation and have completed their 1 year or 2 year course, and so they can come back again to complete their degrees. This is just that. Okay. One of the revolutionary concept is ABC. Sir, it's a unique. It's all course. ABC. ABC is a kind of system. Academic bank of credit. Like we have account in our bank, UGC has developed Academic bank of credit. For example, a student Ramesh has got admission in BA in 2024. With a program having 80 credits. And when these 80 credits are going to be completed, degree will be awarded to him. And you can complete 80 credits within 4 years or 5 years or 6 years or 7 years. Yes, sir. So this is. It will help. Other than that, the certificate or diploma degree, I think not use at present. Later we see what will be use of it. There are many benefits also. You can move from one place to another and you can continue. Yes, sir. Yes. This is another benefit. Yes. You got admission in Patna University. And because of some reason you shifted to Delhi or Calcutta or Bangalore. That's ABC to help. Yeah. ABC to help in that. Helping them. So okay, thank you so much. I think this is the clock. Time is over now. We have fasting also. So thank you so much. Thanks to Professor Sajid Jamal Sahab and HRDC AMU for inviting me to this kind of discussion and deliberation. Thanks to all the participants for a wonderful listening, followed by wonderful question, answer, and discussion. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening. Thank you so much, sir. Thank you, sir.